کراچی سے خیبر تک کے احوال میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور سب سے پہلے شامل کریں گے ہیڈ لائنز۔ ملک بھر کی طرح پنجاب کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں جنگ ستمبر میں لازوال قربانیاں دینے والے نوجوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ 14 کی قبروں پر پھول اور سلامی پیش کی گئی۔ ملتان، سرگودا، بہاولپور سمیت پنجاب بھر میں یوم دفاع جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ ملتان کے ایوب اسٹیڈیم میں دفاعی ساز و سامان کی نمائش، شہریوں نے خصوصی دلچسپی لی۔ چکوال کے سپوت حوالدار چودھری عبدالغفور جنگ ستمبر کے پہلے شہید ہیں۔ انہوں نے بے مثال بہادری کا مظاہرہ کیا اور BRB نہر پر دشمن کے حملے کو پسپا کر دیا۔ اہل خانہ کہتے ہیں شہید کی قربانیوں پر فخر ہے۔ کیڈٹ کالج جھنگ میں یوم دفاع کے موقع پر تقریب کا انعقاد۔ کیڈٹس نے خوبصورت مارچ پاسٹ آؤٹ کیا اور دھنوں پر قومی ترانہ بجایا۔ وطن کی حفاظت کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے، کیڈٹس کا عزم۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بھٹا مزدوروں کا انوکھا احتجاج۔ بھینس کے آگے بین بجاتے رہے، کہتے ہیں اجرتوں میں حکومتی نوٹیفیکیشن کے مطابق اضافہ کیا جائے۔ بھوک ہڑتالی کیمپ 8ویں روز میں داخل۔ ملتان کی مویشی منڈی میں دی گریٹ کالی نامی بیل نے دھوم مچا دی۔ 45 من وزنی بیل کے نخرے بھی خوب ہیں۔ دودھ، مکھن اور دہی پسندیدہ خوراک ہے۔ میرپور خاص میں بھی یوم دفاع کے موقع پر پاک فوج کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کی تقریب منعقد ہوئی۔ سرکاری افسران، سیاسی اور سماجی رہنماؤں، طلباء اور اساتذہ کی شرکت۔ سکھر، خانپور مہر اور شکارپور کے بلائنڈ اسکول میں بنیادی سہولیات کا فقدان۔ اساتذہ اور طلباء نے مطالبات کے حق میں احتجاج کیا۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح پشاور میں بھی یوم دفاع ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ کرنل شیر خان اسٹیڈیم میں پاک فوج کی جانب سے تقریب کا اہتمام۔ فوج کے جوانوں نے قومی پرچم کے ساتھ پیراشوٹ جمپنگ کے ذریعے آسمان میں رنگ بکھیر دیے۔ کوئٹہ میں بھی جنگ ستمبر کے ہیروز کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے عسکری پارک میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ چمن میں مرکزی تقریب FC قلعہ میں منعقد ہوئی، جہاں پرچم کشائی کی گئی۔ اور یوم دفاع کے موقع پر میرپور آزاد کشمیر میں بھی خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ کور کمانڈر منگلا کی خصوصی شرکت، طلباء اور سول سوسائٹی نے بھی تقریب میں بھرپور حصہ لیا۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، سب سے پہلے رخ کریں گے صوبہ پنجاب کا۔ بلیٹن میں سب سے پہلے بات ہوگی یوم دفاع کے حوالے سے۔ ملتان میں بھی یوم دفاع جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ ملتان کور کی جانب سے ایوب اسٹیڈیم میں اسلحے کی نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ نمائش کو دیکھنے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد امڈ آئی۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں اعجاز ترین کی یہ رپورٹ۔ 1965 کو بزدل دشمن نے رات کی تاریکی میں یہ سوچ کر پاکستانی سرحدوں پر حملہ کر دیا کہ شاید پاکستانی قوم سو رہی ہے، لیکن پاکستانی قوم اور بہادر افواج پاکستان نے دشمن کو منہ توڑ جواب دے کر یہ ثابت کیا کہ پاکستانی قوم اپنے ملک کے چپے چپے کا دفاع کرنا جانتی ہے۔ افواج پاکستان نے جس جرات اور بہادری کا مظاہرہ کیا کہ دشمن اپنا ٹینک اور دوسرا اسلحہ چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہوا، پاک فوج کے بہادر سپاہیوں نے دشمن کے ٹینکوں کے آگے لیٹ کر اپنی جانیں قربان کرتے ہوئے جہاں شہادت کا درجہ حاصل کیا، تو وہیں دشمن
अपने नापाक अज़ाइम की तकमील में नाकाम हुआ। सरहदों की हिफाजत करते हुए अपनी जानों का नजराना पेश करने वालों को खराज अकीदत पेश करने के लिए यौम दिफा के मौके पर अयूब स्टेडियम मुल्तान में जंगी साजो सामान की नुमाइश का एहतमाम किया गया ताकि नौजवानों को पाक फौज के इन बहादुरों के कारनामों से आगाह किया जा सके। हम यहाँ नुमाइश देखने आए हैं, यहाँ बहुत मजा आ रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैंने भी फौजी बना है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम नुमाइश देखने आए हैं, हमें नुमाइश बहुत अच्छी लगी है। हमें पाक फौज पर फख्र है। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम यहाँ पे राइफलें देख रहे हैं, सारी चीजें देख रहे हैं और हमारी पाक फौज और मुझे फख्र है। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपने छोटे बच्चों को दिखाने के लिए आए हैं कि हमारे शोहदा जो हैं वो क्या, उनका क्या एम था और वो किस लिए पाकिस्तान को लेकर चल रहे थे और उनका पाकिस्तान को बचाने के लिए उन्होंने क्या क्या कुर्बानियाँ दी। हमारे शोहदा हैं, उन्होंने हमारे लिए जो जानें कुर्बान की, उनको अपने बच्चों को भी साथ लेकर आए हैं ताकि वो यहाँ आकर देखें कि हमारे प्यारे फौजियों ने हमारे लिए कैसे जानें कुर्बान करके हमारे वतन पाकिस्तान को अभी तक शादो आबाद रखा हुआ और अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को कायमो आबाद रखे। बड़ों, बच्चों और खवातीन की एक बड़ी तादाद शरीक हुई और ये साबित किया कि पाकिस्तानी एक जिंदा कौम है और अफवाज पाकिस्तान इस्तेकाम वतन के लिए पेश पेश है। यौम दिफा के मौके पर शहरियों का ये जज्बा साबित करता है कि पाकिस्तान की फौज नाकाबिले तस्खीर है और इंशाल्लाह नाकाबिले तस्खीर रहेगी और कोई भी दुश्मन वतन अजीज की तरफ मैली आंख उठाकर नहीं देख सकता। कैमरामैन फयाज वागा के साथ इजाज तरीन, वक्त न्यूज, मुल्तान। दूसरी जंग अजीम के बाद सियालकोट में टैंकों की सबसे बड़ी जंग हुई। पाक फौज ने ताकत के नशे में चूर दुश्मन के 600 से ज्यादा टैंक तबाह कर दिए। चविंडा का महाज दुश्मन के टैंकों के लिए कब्रिस्तान साबित हुआ। मजीद जानेंगे नईम इकबाल की रिपोर्ट में। सितंबर 1965 को भारतीय फौज ने पाकिस्तान पर हमला किया और 600 टैंकों पर भारतीय फौज तहसील पसरू के कस्बा चविंडा पहुंची थी, जहां पाकिस्तान आर्मी ने जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया और भारतीय फौज को नुकसान पहुंचाया था। चविंडा और गिरदोनवा के शहरियों ने भी जंग में हिस्सा लिया था। दुश्मन के 600 टैंक तबाह हुए और भारत भाग जाने पर मजबूर हुआ। जनरल टिक्का खान और जनरल मूसा खान की क़यादत में यहाँ एक प्लानिंग बनाई, जिन्होंने 10-12 जवान तैयार किए। वो जवान बम बांधकर टैंकों के नीचे आए। जो टैंक गर्क होता जाता था वो पीछे से भागते जाते थे। चविंडा में शोहदा की यादगारें मौजूद हैं, जहां अवाम का रश रहता है। चविंडा का शोहदा पार्क भारत की इबरतनाक शिकस्त की याद ताज़ा कर रहा है। फौज ने टेलीफोन के जरिए, वायरलेस के जरिए पता किया वो थे सी बहुत उच्चा बैठा होंदा सी। वो फिर ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਛੁੱਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਈਆਂ। ਸੁਬਾਹ 7 ਵਜੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਫਾਇਰ ਹੋਣ ਪਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੇ उदों आन के नारा मारा पाकिस्तान जिंदाबाद। मार्का चविंडा की वजह से सियालकोट को हलाले इस्तकलाल दिया गया और आज भी पाकिस्तान की खातर हर शहरी किसी भी किस्म की जानी और माली कुर्बानी देने को तैयार है। सितंबर 1965 में भारत को इबरतनाक शिकस्त के बाद आज भी पाकिस्तानी कौम मुकम्मल जज्बे के साथ जो है वो पाक फौज की क़यादत में जो है वो मुत्तहिदा और वतन के लिए हर किस्म की जानी और माली कुर्बानी देने के लिए तैयार है। कैमरामैन सैयद शाहिद इकराम के साथ मियां नईम इकबाल, वक्त न्यूज़, सियालकोट। जिस्म बूढ़ा मगर जज्बा आज भी जवान है। शहादत ना मिली मगर 1965 की जंग का गाजी हूँ। जंग सितंबर के गाजी सूबेदार लाल खान की दास्तान जानते हैं जंग से मोहम्मद मासूम अहमद की इस रिपोर्ट में। की जंग का गाजी लाल खान रसाला यूनिट में बतौर सिपाही शहसवार भर्ती हुआ और बेहतरीन शहसवार जंपर और नेजाबाज रहा। लाल खान 1965 की जंग में दरियाए नीलम के करीब वाक़े पहाड़ी 729 पर अपने यूनिट के साथ वतन अजीज की हिफाजत पर मामूर थे। गाजी लाल खान ने बताया कि 1965 की जंग में इनका सामना एक ऐसी फौज से था जो तादाद और जंगी हथियारों में इनसे कई गुना ज्यादा थी, मगर पाकिस्तानी फौज का जज्बा ईमानी इन पर हावी था। उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की
टोपे हमेशा के लिए खामोश न हो जाए। हिंदुस्तानी हुक्मरान शायद अभी नहीं जानते कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। दुश्मनों, तुमने उस कौम को ललकारा है। 1965 में हिंदुस्तान के पाकिस्तान पर अचानक हमले के बाद फील्ड मार्शल अयूब खान की आवाज पर न सिर्फ अफवाज पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तानी कौम के हर फर्द ने लब्बैक कहा। हर पाकिस्तानी में हिंदुस्तान के खिलाफ एक अजब जोश व वलवला देखने में आया। शहरी खाना पकाकर सरहदों पर ले जाते और फौजी भाइयों के साथ बैठकर खाते। लाल खान ने बताया कि दरियाए नीलम पर एक पुल था जिससे गुजरकर वो राशन, जंगी हथियार और सामान पहाड़ी 7229 तक ले जाते। आमदोरफ्त के इस वक्त रास्ते पर भारतीय जंगी जहाजों ने कई बार भरपूर हमले किए, मगर हुक्म इलाही से वो पुल सलामत रहा। पाकिस्तानी फौज जिस जज्बे, जुर्रत और बहादुरी से लड़ी, इसकी मिसाल नहीं मिलती। वो बम गिराते थे पुल के ऊपर और एक नहीं 4-4 जहाजों का वो ग्रुप वहां से गुजरता था। तो वो या तो दरिया पुल से 50 का दाएं गिरते थे बम या बाएं गिरते थे। हमारा सिपह सलार हमें आर्डर दे तो हम एकदम बजाय इसके कि वो थोड़ी थोड़ी शरारतें करते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं, तो हम बॉर्डर क्रॉस करके आगे जम्मू वगैरह सारा हम उनसे ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लाल खान का कहना था कि इसका जिस्म बूढ़ा हो चुका है मगर जज्बा आज भी जवां है। वो आज भी पाक फौज के सिपह सलार के इशारे के मुंतजिर हैं। इनके जिस्म में आज भी इतनी ताकत है कि वो दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं। चकवाल के सपूत और जंगे सितंबर के पहले शहीद हवालदार चौधरी अब्दुल गफूर, जिन्होंने जंगे सितंबर में बेमिसाल बहादुरी का मुजाहिरा किया और बीआरबी नहर पर दुश्मन के हमले को पसपा कर दिया। जंगे सितंबर में उनकी बहादुरी के बारे में मजीद जानेंगे फैसल अवान की इस रिपोर्ट में। चकवाल के इलाके धरोगी राजगाल की रिहायशी हवालदार चौधरी अब्दुल गफूर का ताल्लुक बलोच रेजिमेंट से था। 6 सितंबर 1965 को जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तब चौधरी अब्दुल गफूर बीआरबी नहर पर तैनात थे। चौधरी अब्दुल गफूर ने दीगर साथियों के साथ मिलकर दुश्मन के हमले को पेशपा कर दिया। हवलदार चौधरी अब्दुल गफूर भारतीय फौज के दूसरे हमले में जामे शहादत नौश कर गए। अहले खाना के मुताबिक हवलदार अब्दुल गफूर मुल्क के लिए कुछ करने के ख्वाहिशमंद थे। उन्होंने मादरे वतन के दिफा के लिए ऐसी बेमिसाल बहादुरी का मुजाहिरा किया कि जान तो कुर्बान कर दी लेकिन दुश्मन को आगे न बढ़ने दिया। मशीन गन पर खड़े हुए वेलकम बैक। मुल्क भर की तरह डस्का में भी यौम दिफा के सिलसिले में तकरीबात का इनेकाद किया गया। 11 और चुविंडा और में शोहदा को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया। मुल्क भर की तरह डस्का में भी यौम दिफा पाकिस्तान जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मकामी इंतजामिया की जानिब से हाईवे रेस्ट हाउस में परचम कुशाई की तकरीब मुनक़िद की गई। पंजाब पुलिस के एहलकारों ने इस मौके पर सलामी पेश की, जबकि कब्रिस्तान शहीदा में चविंडा के महाज पर जामे शहादत नोश करने वाले पाक फौज के 19 शोहदा की यादगारों पर फूलों की चादरें चढ़ाई गई। इस मौके पर शहरियों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी, जबकि दिन भर शोहदा के मज़ारात पर उन्हें खिराज अकीदत पेश करने और फातिह ख्वानी के लिए आने वाले खवातीन और बच्चों और जवानों का तांता बंधा रहा। गुजरांवाला कैंट निशाने मंजिल के मकाम पर 6 सितंबर की शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। बच्चों की शानदार परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। यौम दिफा के मौके पर मुल्क भर की तरह गुजरांवाला में भी तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं। इस सिलसिले में पाक आर्मी की जानिब से गुजरांवाला कैंट निशान मंजिल पर पाक आर्मी के चाको चौबंद दस्ते ने परेड करते हुए जंगे सितंबर के शोहदा को सलामी पेश की। मुख्तलिफ स्कूल्स के बच्चों ने मिली नगमे पेश किए। इस मौके पर बच्चों ने पाक फौज के शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मुख्तलिफ टैब्लोज भी पेश किए। कोर कमांडर गुजरांवाला लेफ्टिनेंट जनरल इकरामुल हक ने शोहदा की यादगार पर फूल चढ़ाए। तकरीब में गुजरांवाला और हाफिजाबाद के अजलास से ताल्लुक रखने वाले 250 शोहदा के अहले खाना को बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ किया गया था। तकरीब के इख्तिताम पर शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। कैडेट कॉलेज जंग में यौम दिफा के मौके पर तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में कैडेट्स ने खूबसूरत मार्च पास किया और कौमी तराना बजाया गया।
कैडेट कॉलेज झंग में यौम दिफा के मौके पर मुनक्किदा तकरीब में कॉलेज के प्रिंसिपल कमांडर रिटायर्ड सोहेब फारूक, कॉलेज स्टाफ, कैडेट्स और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब में कैडेट ने खूबसूरत मार्च पास्ट किया और कौमी तराना बजाया गया और सलामी दी। तकरीब से खिताब करते हुए प्रिंसिपल ने कहा कि 6 सितंबर का दिन पाकिस्तान की तारीख का यादगार दिन है। इस रोज पाकिस्तान की तरफ उठने वाले हर नापाक कदम को जिस दीदा दलेरी के साथ रोका गया, वो जज्बा आज भी ताज़ा है और हम वतन की हिफाजत के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। 1965 में आज से 51 साल पहले जिस कुर्बानी के साथ इस मुल्क को लोगों ने अपनी जानें देकर बचाया था, इस जज्बे को जारी रखना है। कैडेट कॉलेज के असातिज़ा और कैडेट्स का कहना था कि हम में आज भी 6 सितंबर वाला जज्बा मौजूद है, लेकिन इसके लिए हमें कायद-ए-आज़म के पैगाम को याद रखना होगा और काम काम और बस काम पर अमल पैरा होना होगा। हम लोग बिल्कुल भी बुज़दिल नहीं है। हम लोग अपने दुश्मनों से लड़कर मुकाबला कर सकते हैं और बहुत ही हिम्मत और हम लोग को बहादुरी दिखाने की जरूरत है। दुश्मन को ये बताना चाहते हैं कि अगर वो दोबारा ऐसी गुस्ताखी करने की कोशिश करेगा तो हमें 1965 दोहराते हुए जरा भी हिचकिचाहट नहीं होगी। उनका मजीद कहना था कि उन्होंने जिस तरह दुश्मन को 6 सितंबर के दिन सबक सिखाया, आज भी अगर दुश्मन उनकी तरफ मैली आंख से देखता है तो उसे निस्तो नाबूद कर सकते हैं। रहीम यार खान में यौम दिफा की मरकजी तकरीब बहादुरपुर कैंट में मुनाकिद की गई। चाको चौबंद दस्ते ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और सलामी पेश की। रहीम यार खान बहादुरपुर कैंट में मुनाकिदा तकरीब में पाक फौज के जवानों, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स, जवानों, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और शोहदा के लवाहिकीन समेत आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों ने भी शिरकत की। तकरीब के आगाज में परचम कुशाई की गई और बच्चों ने यौम दिफा के हवाले से तकारीर की और टैबलोज भी पेश किए गए। यौम दिफा की तकरीब में मुल्क के ये जान निछावर करने वाले शोहदा के अहले खाना और 1965 की जंग के गाजियों ने भी शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और सलामी पेश की। कैडेट कॉलेज मरी में सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाक फौज के अफसरान, सिविल सोसाइटी और बच्चों ने भरपूर शिरकत की। तलबा ने शानदार परफॉर्मेंस पेश की और खूब दाद वसूल की। मरी कैडेट कॉलेज में दूसरी सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तुलबा, असातिज़ा समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में रंगारंग खाके और प्रोग्राम पेश किए गए। तुलबा के रवायती रक्स ने भी खूब रंग जमाया। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि इस इदारे को ये फख्र हासिल है कि इसने कौम के ऐसे सपूत दिए जो वतन अजीज के तमाम अहम शोबों में पेशा वराना जिम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। इस मौका पर कॉलेज के प्रिंसिपल ने सालाना रिपोर्ट भी पेश की। कुछ मजीद खबरें शामिल करते हैं। वजीराबाद के करीबी इलाका सारो की चीमा के मकीन गुज़श्ता 30 सालों से इंतहाई खस्ता हाली के आलम में जिंदगी के दिन गुजारने पर मजबूर हैं। हुकूमती इदारों पर इलाके को तरक्की याफ्ता बनाने का ख्याल आया तो खूबसूरत पार्क बनाने के नाम पर गाँव के रिवायती जोहड़ों को बंद कर दिया गया। ठेकेदारों की जानिब से निकासी आब का मुतबादिल बंदोबस्त न किया गया और अहले इलाका को बेयारो मददगार छोड़कर गायब हो गए। निकासी का मुनासिब इंतजाम न होने के बायस गंदे पानी गलियों में खड़ा होना मामूल बन चुका है। दूसरी जानिब कीमती अराजी पर पार्क्स तो न बने पर कब्जा माफिया सरगर्म जरूर हो चुका है। अहले इलाका ने इंतजामिया की गफलत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि अवामी नुमाइंदों ने मुंतखब होने के बाद इलाके का रुख करना भी गवारा नहीं किया। इंतजामिया और मकामी सियासतदानों की गफलत से इलाका मकीनों की जिंदगियां अजाब बन चुकी हैं।